Friends, as perhaps some of you know, I worked in a government service. I had been throughout India and in the service of Food Corporation of India. My job was to see the quality of the food grain, particularly wheat and rice. During my service, I had visited all over the country, all the FCI godowns and the production centers. I had been with the farmers, with the consumers, and with the bureaucrats, state governments. Our job was just to purchase the grain and deliver the grain wherever it is needed. Today, after my retirement from the officer's post from FCI, I started an NGO and then I was involved in the social work. Later on, I came in contact with a registered society, Indian Renaissance Institute, which was founded by the great revolutionary Manindranath Roy, who was not only persecuted by the British, but he remained in the jail for about 12 years, and then he, leaving all these parties and party politics, started humanism. He started one magazine which is Radical Humanist, and we are in the process of developing his work and his magazine and all that. Today, Mr. Pathania met me. I am very grateful that he is also doing the same work, but there is a difference. We are expressing and spreading the ideas of Mr. M.N. Roy and other revolutionaries towards the development of the humanity. But Mr. Pathania is doing this work on a grassroots level. He is exploiting the very instinct of the human, that how to develop humanity will be developed when they have a good sources of income. So he is doing that job. I am very glad and I am very grateful that such people are working. He is working in Himachal Pradesh and he has started a number of small units of production and giving employment to particularly the ladies and unemployed youth. So I wish him all the success, and I hope that why I could not help him, why I could not associate with him. That's all. On stage. Up next is Social Impact Award, and it's backed by Grahani Savyam Savrozgar Sangh. Dr. Ashok Kumar Pathania to please be on stage. Dr. Pathania, sir. Let's all congratulate Grahani Swayam Swarozgar Sangh. Dr. Pathania joining us on stage. Let's all congratulate, ladies and gentlemen, let's come together and congratulate. It's a proud moment for the MSME coming on stage. Up next is MSME Ratna Award being given to Guru Nanak Institute of Medical Technology, Dr. Subhash Davar, joining us on stage from Guru Nanak. तो छोट को सब कुछ मैंने कुर्बान कर दिया, तो मैं अपने पिंड दान करके आया हूँ। कोई मरने के बाद करते हैं ना, मैंने जीते जी करके आके मैंने अपना तन मन धन जमीन एक सब राष्ट्र के नाम काटी। और क्योंकि देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारी मां भारती को मिला जिसका भी हम 40 साल से इंतजार कर रहे थे कि ऐसा आए जो युवाओं की सोच। ऑनरेबल श्री अतीश कुमार सिंह, Joint Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Ms. Taru Dhayyari, Managing Director, JAPAC, SMB and Scaled Services, Google Cloud. Mr. Sachin Dubey, Cloud BU Head, Redington Limited. मुझे बहुत खुशी है आज मंडे की सुबह आप सबको यहाँ देखकर, और मैं सबसे बड़ी खुशी की आज आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैं सुबह मिल रहा था आप लोगों से, तो मैंने कुछ लोगों से जब कार्ड एक्सचेंज किए तो मैंने देखा कि कुछ लोगों के कार्ड, विजिटिंग कार्ड पर मैंने देखा कि सर उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रिंट है। मुझे इतनी खुशी हुई है देखकर
कि उद्यम रजिस्ट्रेशन जो एकमात्र रजिस्ट्रेशन है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है कि अब हम एमएसएमईज अपने विजिटिंग कार्ड पर ये उद्यम रजिस्ट्रेशन भी छाप कर रख रहे हैं। तो एक बार मुझे लगता है कि जोरदार तालियां मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए होनी चाहिए कि आपने सारे उद्यम को हमारा एक पहचान पत्र बना दिया है। मैं अगर थोड़ा आपको चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में बताऊं, तो हमारा जो चैम्बर है वो एमएसएमईज की और स्टार्टअप की हैंड होल्डिंग और उनको सपोर्ट करने के लिए है। और मुझे सरकार की जो इंक्लूसिवनेस है उसके लिए मैं on stage. Up next is Social Impact Award and it's backed by Grahani Savyam Savrozgar Sangh. Dr. Ashok Kumar Pathania to please be on stage. Dr. Pathania, sir. Let's all congratulate to Grahani Swayam Swarozgar Sangh. Dr. Pathania joining us on stage. Let's all congratulate, ladies and gentlemen, let's come together and congratulate. It's a proud moment for the MSME coming on stage. Up next is MSME Ratna Award being given to Guru Nanak Institute of Medical Technology, Dr. Subhash Davar, joining us on stage from Guru Nanak. वहां पे पहुंचे, मैं भी आ रहा हूं। यहाँ हिमाचल प्रदेश से हमारे एक आंदोलनकारी आए हैं जो किसान है खुद, और कुछ अच्छी बात लेके एक अच्छा गान लेके आपके सामने आए हैं, तो मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। अशोक पठानिया ये आपके सामने अपनी बात रखेंगे। आ गए मां भारती के वीर सपूत, अन्ना हजारे जी के बन के दूत, नई जागृति लाएंगे, सारा भारत जगाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये एक महामंत्र है, आप सभी झंडे हिलाइए और महामंत्र जरूर जपिए, पूरा हिंदुस्तान जागेगा, ये मुझे विश्वास है। जपिए, सीडी ऑन करिए। On stage. Up next is Social Impact Award and it's backed by Grahani Savyam Savrozgar Sangh. Dr. Ashok Kumar Pathania to please be on stage. Dr. Pathania, sir. Let's all congratulate to Grahani Swayam Swarozgar Sangh. Dr. Pathania joining us on stage. Let's all congratulate, ladies and gentlemen, let's come together and congratulate. It's a proud moment for the MSME coming on stage. Up next is MSME Ratna Award being given to Guru Nanak Institute of Medical Technology, Dr. Subhash Davar, joining us on stage from Guru Nanak. पत्नी विरणुगच्छेम देवाः पुत्रैर्भ्रातृभिरुतवा हिरण्यहीनाकं गृह्णानः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अतिरोचने दिवाः द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं भवामहे प्रिया। छोट को सब कुछ मैंने कुर्बान कर दिया, तो मैं अपने पिंड दान करके आया हूँ। कोई मरने के बाद करते हैं ना, मैंने जीते जी करके आके मैंने अपना तन मन धन जमीन एक सब राष्ट्र के नाम कर दी। क्योंकि देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारी मां भारती को मिला जिसका भी हम 40 साल से इंतजार कर रहे थे कि ऐसा आए जो युवाओं की सोच
Ministry of MSME. Please welcome him with a warm round of applause. Very good evening to all of you. Dr. Ram Singh, Director of the Delhi School of Economics, Mr. Mukesh Gupta, President of the Chamber of Indian MSMEs, distinguished delegates, ladies and gentlemen. First of all, let me thank Mr. Mukesh Gupta for giving me this opportunity to be among you. And one thing that I like about Mr. Gupta is that he not only participates very enthusiastically in the events and also the work of the Chamber of MSME, but he very enthusiastically also participates in various events that we organize in the Ministry of MSME. So in fact, in the post-budget discussions, the webinars which were conducted by the ministry, Mr. Mukesh Gupta was a participant there and he brings in valuable advice. So, ladies and gentlemen, first of all, let me take this opportunity to basically speak on the issue on which I have been invited. So, when we speak about micro, small and medium enterprises, we are speaking about a very, very different On stage. Up next is Social Impact Award, and it's backed by Grahani Savyam Swarojgar Sangh. Dr. Ashok Kumar Pathania to be on stage. Dr. Pathania, sir. Let's all congratulate to Grahani Swayam Swarojgar Sangh. Dr. Pathania joining us on stage. Let's all congratulate, ladies and gentlemen, let's come together and congratulate. It's a proud moment for the MSME coming on stage. Up next is MSME Ratna Award being given to Guru Nanak Institute of Medical Technology, Dr. Subhash Davar, joining us on stage from Guru Nanak. मल्हाड़ी गांव में जो सेल्फ हेल्प की जो वीओ की सदस्य हैं, इन बहनों को एक प्रशिक्षण दिया गया कैसे पैकिंग होती है, जैसे एमएसएमई बनना हो तो क्या क्या चीज़ें मालिकों को भी फेस करना पड़ती है, नीचे जो काम करते हैं उनको भी क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो बहुत ही अच्छा फीडबैक रहेगा। 10 से 12 दिन की ये प्रशिक्षण चला और इन लोगों का काम देख के उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी गई कंपनी द्वारा, तो बहुत ही अच्छा लगा और सभी खुश हैं। और ऐसी चीज़ें जब हर गांव में होने लगे बड़े, तो एक बहुत बड़ा हर घर की इनकम जनरेट का ये संसाधन होगा। तो हमारे प्रयास जारी हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका इस कार्य इस दौरान जब आप अपना लक्ष्य लेके चल रही है, हो सकता है आपका हर फैसला सही नहीं हो सकता है हर इंसान आपको सही नहीं मिले, हो सकता है हर सौदे में आपको फायदा नहीं हो सकता है हर राह आपको रोशनी की तरफ न ले जाए, हो सकता है हर लहर आपकी नाव को किनारे से दूर ले जाए, लेकिन फिर भी आपको फैसले लेने होंगे, आपको सही लोगों का चयन करना होगा। आपको अपने लक्ष्य के लिए अगर प्रारंभिक फायदा नहीं हो तो भी आपको उसके लिए सतत कार्यशील रहना पड़ेगा। आप अपना रास्ता डिसाइड करके उस रास्ते पर आपको चलना होगा। आपको अपनी नाव को लहरों में उतारना होगा और किनारे पर बैठकर किसी दूसरे की सफलता की कहानियां सुनना हमारे जीवन का मकसद नहीं है। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ना आपका लक्ष्य है। यहाँ 3 दिन में, यहाँ 2 दिन में आप सब लोग विविध उद्बोधनों के माध्यम से, विचार विमर्श के माध्यम से, विचार मंथन के माध्यम से जो कुछ भी नवनीत प्रकट हो उसको आप सहेज कर अपने यहाँ ले जाइए, अपने घर परिवार, अपने उद्यम सब में उसका आप उपयोग करें, आपको जीवन में सफलता मिले। और कुछ दिनों बाद तो हमारे सबके जीवन आदर्श प्रभु श्री राम के
अपने मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, प्रभु राम अपने जैसे अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वहाँ जा रहे हैं, उन्हीं के जीवन को आदर्श मानकर। अगर हम देखें प्रभु राम के जीवन को और उनके परिवार के जीवन को, सब कुछ होते हुए भी कितनी कठिनाइयाँ आई, लेकिन फिर भी अंतिम विजय सत्य की हुई। और इसीलिए सिर्फ 2 शब्दों के साथ कि राजमहल राजवंश रूठे तो राजमहल छूटे तो राज मुकुट टूटे तो सियापति राघव से साथ सीता का छूटे तो हिम्मत न हार करने सागर को पार, पत्थरों में प्राण फूंक सेतु फिर बनाना है, पतझड़ का मतलब फिर बसंत आना है। जीवन में अगर कहीं कुछ पतझड़ का आभास हो रहा है तो बिल्कुल निराश मत होइए, अपने कार्य में लगे रहिए, आपके जीवन में खूब सफलता मिले, आपके जीवन के लक्ष्य को आप प्राप्त करें। और यहाँ ये कार्यक्रम की 2 दिवसीय इस अधिवेशन की पूरी सफलता के लिए मेरी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सोच समझो, बहुत कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है और आप लोगों को उस चेंज को अपनाना है, उससे डरना नहीं है। अगर आप डरोगे तो आप उतनी आगे तक नहीं पहुंच पाओगे जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि दूसरे उस चेंज को अपना के और आगे चल रहे हैं। सो दैट इज माय सिंगुलर मैसेज टू ऑल ऑफ यू। प्लीज this video film certainly captured that element and very beautifully. You look at change, and in that light, since there is a lot of discussion today on digitalization and digitization, please look at Udyam certification. और जैसे मुकेश जी ने शुरू में बताया कि now people are capturing or putting their Udyam certification on their business card, which is a great thing which is happening. But for the rest of you who haven't joined the formal process, who haven't joined the formalization system or joined or come inside the formal system, लेकिन just because they have not registered on time और कोई और उसका registration करके उनका नाम ले लेता है, then it becomes a big challenge to get that name back. So what I would suggest is आप जैसे जितने लोग हैं, आप कुछ भी करिए, पहले आप ब्रांड में इन्वेस्ट करिए, आप ट्रेडमार्क में इन्वेस्ट करिए, अपनी मार्केट पहचान में मार्केट में अपनी पहचान बनाइए, and then take this forward, and you will remember that trademark is how you will differentiate your product from somebody else's. Yeah, so I would like to add that what Mukesh was saying, MSME Ministry has a scheme called MSME Innovative Scheme. इसमें पूरा आपके even if you want to develop some prototype, स्टूडेंट्स के लिए भी उसमें मतलब देयर इज फंडिंग फॉर इवन कॉलेज के लिए, स्टूडेंट्स के आइडियाज के लिए. सो एक्चुअली ब्रांड वन इज दैट ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन जो भी नॉन एमसीए कंपनी है, पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप, उनकी इस साल जो बुक्स बनेंगी नए फॉर्मेट में बनेंगी, उनकी बैलेंस शीट नए तरीके से बनेगी, उनका पीएनएल नए तरीके से बनेगा और आपकी ऑडिट भी इसी ही फॉर्मेट में होगी. ये आपकी सीए को बनाना है. अगर आपको ये बात नहीं पता और ऑडिटिंग का टाइम चल रहा है तो प्लीज हैव अ वर्ड विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नॉन प्रॉफिट एंटिटी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एफएस को एनसीई. बात करें अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि जो गाइडलाइंस आई है, ये गाइडलाइन आज के दिन एक फाइल कर रही थी, लेकिन इस साल से बनाना क्या मेरी बैलेंस शीट नए फॉर्मेट में बन रही कि नहीं बन रही, ये जरूर पूछेगा. बिकॉज कंप्लायंस का सेक्शन है, सुबह से कंप्लायंस की बात कर रहे हैं तो ये भी आपके कंप्लायंस का ही पार्ट करते हैं. On stage. Up next is Social Impact Award, and it's backed by Grahani Savyam Savrozgar Sangh. Dr. Ashok Kumar Pathania to please be on stage. Dr. Pathania, sir. Let's all congratulate Grahani Swayam Swarojkar Sangh. Dr. Pathania joining us on stage. Let's all congratulate, ladies and gentlemen, let's come together and congratulate. It's a proud moment for the MSME coming on stage. Up next is MSME Ratna Award being given to Guru Nanak Institute of Medical Technology, Dr. Subhash Davar, joining us on stage.
from Guru Nanak. मैं जी पुष्पदीप सिंह मैं इतने क्वालिटी इंस्पैक्टर हाँ ठीक है मेरी क्वालिफिकेशन है मैं बीटेक फूड साइंस एंड टैक्नोलॉजी की हुई MBA की हुई है ऑपरेशनल मैनेजमेंट से इतने पठानिया जी मिले उन्होंने अनुग्रह किया आप आओ सारी कंपनी से मतलब अपनी लेडीज को लैके उन्होंने काम दसो अं उन्होंने काम सिखाई वो सू थोड़ा वो सू हैल्प करें थोड़ा अं उन्होंने हैल्प करें उन्होंने भी रोजगार मिलेगा जो इतने आएंगे काम सीखने सब कुछ करनगे इस करके अं पठानिया ने अनुग्रह किया वो साथ लाए उन्होंने बहुत सारी हैल्प की है उन्होंने सारी कंपनी के रूप में काम चल रहा लेबरिंग चल रही पैकिंग चल रही है क्वालिटी मेंटेन करके आप काम कर रहे हैं सारा पठानिया जी बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य कर रहे हैं जिन्हें महिलाएं जी साड़ी माता भैन घर बैठी हुई फ्री बैठी हुई है तो उन्होंने एक कार्य काम करने का अवसर दे रहे हैं उन्होंने प्रैक्टिस दे रहे काम दे रहे हैं जोड़ा कि बहुत ही सराहनीय कार्य है असं पठानिया जी इस कार्य की बड़ी वो कर रहे हैं सराहनीय कर रहे हैं इदा ही तुम काम साड़ी मावां भैनों को काम देते रहो उन्होंने रोजगार देते रहो उधर गापुर पर से हूँ हमें उनकी कंपनी से अच्छा एक काम मिला है तो और हम सीएससी पैकिंग कर रहे हैं पैकिंग का काम सीख रहे हैं On stage. Up next is Social Impact Award and it's backed by Grahani Savyam Savrozgar Sangh. Dr. Ashok Kumar Pathania to be on stage. Dr. Pathania, sir. Let's all congratulate Grahani Swayam Swarojgar Sangh. Dr. Pathania joining us on stage. Let's all congratulate, ladies and gentlemen, let's come together and congratulate. It's a proud moment for the MSME coming on stage. Up next is MSME Ratna Award being given to Guru Nanak Institute of Medical Technology, Dr. Subhash Davar, joining us on stage from Guru Nanak. ओम नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार पठानिया, गांव मलाहड़ी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। तो 5 साल पहले मैं विदेशों में था, 17 साल मैं विदेश में रहा हूं। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे देश को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो स्वरोजगारों का सृजन करे, तो उस समय हम एक संकल्प लेके लगभग 2019 में भारत में लौट आए और जो भी 17 सालों में कमाया था तो इसी मिशन में हमने लगा दिया और एक वुमेन एम्पावरमेंट और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगारों के लिए एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम है गृहिणी स्वयं स्वरोजगार संघ। तो गृहिणी स्वयं रोजगार संघ निःशुल्क सेवा से पिछले 5 सालों से समस्त भारत में 4 दिन ही ਤੁਹਾਡੇ 4 दिन ही लगे थे बस। ये दीदी ये 500 ग्राम आहो उन्हें ना गिने घट चली है ना बाद देखा हिसाब किताब मैं जल्दबाजी भी ठीक है पता किन्ने आए तो की पूरे दोवां की 3900 आया है ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो काम पसंद आया ना, आगे भी करिए। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, चलो ठीक है ना। हाँ, बाकी की बोलो लियो है ना जेडे रही है। हाँ 3 ही है ना इधरों, छाया दीदी हो रही है। चलो ठीक है। हे 12 डिसेंबर 12 आंदोलन आहे, डिसेंबर 2012 आंदोलन। हा आपल्याकडे घेतो नाही, आपल्याकडे हा। पर अब सबसे बड़ी लड़ाई है बेरोजगारी से और
स्वरोजगारों द्वारा भारत के घर घर में हर एक घर को किसी का माई बाप बेटा, किसी का बेटा 10, 15, 20 हजार के लिए अपने गांव से पलायन ना करे, ये मिशन लेके चले हुए हैं। तो हम चित्तौड़गढ़ की भूमि से आज प्रण लेते हैं कि तमाम उम्र हम इसी लक्ष्य के लिए अग्रसर रहेंगे और जो भी बाधाएं आएंगी हम उसका स्वागत करते हैं। ये महिलाओं की संस्था का निर्माण किया है और इसका पूरे भारत में पहला प्रोजेक्ट मैं अभी 6 साल बाद डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के मलाड़ी गांव में लगाने जा रहा हूं। तो वहां पे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, गवर्नमेंट के पास कर्मचारी कम है और गांव में लेट पहुंचती हैं, तो जहां से हम लोग एक कलेक्शन सेंटर जिसे लिखा ग्रामीण सूचना एवं अवेयरनेस और कलेक्शन सेंटर खोला जाता है गांव के लोगों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। मैं धन्यवाद करती हूँ गुरु आचार्य संजीव शर्मा जी का, जिन्होंने हमें जो है इतना सहयोग दिया। उन्होंने अपना वादा किया था, उसको उन्होंने कंप्लीट भी किया। इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ उनका। साथ के साथ मैं विवेक सर जी का भी धन्यवाद करती हूँ, अपनी हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ। साथ के साथ अपने अशोक भैया पठानिया जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतनी लगन और मेहनत से यहाँ पे काम किया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम शिवाली धीमान ग्राम पंचायत धमांद्री से हूँ और आज मुझे यहाँ पे धुंधला पंचायत में आने का मौका मिला है। यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो मशीनें लगाई गई हैं उनके लिए हम अपने मंत्री साहब तोमर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, साथ में डीसी राघव शर्मा जी का और साथ में केंद्रीय सरकार और संजीव शर्मा तोमर सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेडीज़ को दी है जिससे वो अपना रोजगार कमा सकती हैं और साथ में आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इस तरह का मौका हर पंचायत में अगर लोगों को मिलेगा तो वो अपने जीवन के स्तर को सुधार सकेंगे और देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने पंचायत के लिए कुछ कर सकेंगे। ऐसी अपॉर्चुनिटी आती रहे और लेडीज़ अपने जीवन स्तर को सुधारें तो इससे बड़ी और अच्छी बात कोई नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के मिशन के अंतर्गत ये जो अपॉर्चुनिटी लेडीज़ को दी जा रही है वो बहुत ही सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। On stage. Up next is Social Impact Award and it's backed by Grahani Savyam Swarojgar Sangh. Dr. Ashok Kumar Pathania to please be on stage. Dr. Pathania, sir. Let's all congratulate Grahani Swarojgar Sangh. Dr. Pathania joining us on stage. Let's all congratulate, ladies and gentlemen, let's come together and congratulate. It's a proud moment for the MSME coming on stage. Up next is MSME Ratna Award being given to Guru Nanak Institute of Medical Technology, Dr. Subhash Davar, joining us on stage from Guru Nanak. पठानिया जी का, हमारी पंचायत ग्राम पंचायत धुंधला के जो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मैं पठानिया जी का भी इस काम के लिए बहुत बहुत ये धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने जो आज मिल्क प्लांट की मशीनरी जो यहाँ पर उपलब्ध करवाई, तो इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल प्रदेश सरकार और मंत्री महोदय और हाँ विवेक शर्मा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमारी ग्राम पंचायत धुंधला में ये कार्य करवाया। धन्यवाद। चलो।
एक देश को मैसेज देना चाहता हूँ कि एआई के ज़माने में बेरोजगारी को अंकुश लगाने के लिए हर घर स्वरोजगारों को अपनाएं, ताकि विदेशों में मैंने देखा, मैं 17 साल विदेश में रहा हूँ, वहाँ पर देखा है कि हमारे बच्चे वहाँ पर स्टडी के साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। तो हम क्यों ना जहाँ पर भी अपने भारत में ऐसी चीज़ें करें कि स्टडी के साथ साथ हमारे बच्चे हैं जो पार्ट टाइम जॉब करें। कि बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक दशा ठीक नहीं है और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो माँ बाप की भी हेल्प हो जाएगी। और विशेषकर रूरल एरिया में स्वरोजगारों की बहुत ही दिक्कत है। एक आदमी कमाता है तो सारे ही उसके ऊपर डिपेंड हैं। तो क्यों ना हम जो घर का उन मातृशक्ति के आगे अनुग्रह कि घर का कामकाज करके जो पार्ट टाइम थोड़ा सा समय बनता है, तो सरकार की NRM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन व नबार्ड की बहुत सी स्कीमें हैं, DIC की बहुत सी स्कीमें, जिससे आपको अनुदान, ऋण और ग्रांट्स भी मिलती हैं। तो बस चलने की ज़रूरत है। तो इसी के बाद लगभग 1 लाख महिलाएं हिमाचल से जुड़ी हैं। यूपी लगभग भारत की कोई ऐसी स्टेट नहीं है कि जहाँ से 10 या 20 हज़ार महिलाएं हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ी हो। पठानिया ये भी बीच पहुंचा है, बड़ी सेवा करता है। ये व्यक्ति वो व्यक्ति था जब अन्ना हजारे जी धरने पर बैठे थे तब इसने गाना भी गाया था वहां जाकर बॉम्बे में। तो पठानिया जी का भी अभिनंदन करता हूँ, बड़ी दूर से बलाड़ी से पहुंचे। चलिए वहां पे पहुंचे, मैं भी आ रहा हूँ। यहाँ हिमाचल प्रदेश से हमारे एक आंदोलनकारी आए हैं जो किसान है खुद, और कुछ अच्छी बात लेके, एक अच्छा गान लेके आपके सामने आए हैं। तो मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। अशोक पठानिया ये आपके सामने अपनी बात रखेंगे। आ गए मां भारती के वीर सपूत, अन्ना हजारे जी के बन के दूत, नई जागृति लाएंगे, सारा भारत जगाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये एक महामंत्र है, आप सभी झंडे हिलाइए और महामंत्र जरूर जपिए, पूरा हिंदुस्तान जागेगा, ये मुझे विश्वास है। जपिए, सीडी ऑन करिए। तो आज हमें आंध्र प्रदेश के पुलवेंदला गाँव में है, तो जहाँ पर केले की खेती बहुत ज़्यादा होती है, मौसमी की होती है। तो उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, जो इनका केला जो सिंगल टूट जाता है, तो उसके लिए प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रही थी। तो इन्होंने जुड़े थे काफ़ी सालों से, तो इन्होंने बुलाया, तो आज सर्वा करने आया। तो जहाँ पर जब मैंने पूरे गांव का सर्वा किया तो देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई कमी नहीं है वैसे देखा जाए। तो अभी बीच में क्या है वो पता करते हैं। कि ये देखिए, आपको बताऊं कि अगर हम उस जो आपका जो केला जहाँ पे इस इलाके का जो सिंगल टूट के जाते हैं, जिसे हम C या D ग्रेड कहा जाता है उसे, तो वो चिप्स के लिए उपयोग हो सकता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने देखिए बहुत कुछ, जो सोलर ड्रायर है, इतने बड़े बड़े ये सारे सोलर ड्रायर है, लगभग मैं तो करोड़ों रुपया खर्चा किया हुआ है ये बनाओ पर। अब ये लगभग बंद ही पड़ा हुआ है। तो तालों पे भी देखिए जंग लग गया है। तो सरकारी मशीनरी का जो भाई जी जो सरकार का पैसा है, उसे जा तो मैं भाई गलती मानता हूँ अपने लोगों की ही, कि हम लोग चला नहीं पाए। क्या प्रोसेस है उसकी, वो पूरा पेपर प्रोसेस पूरा कीजिए। और मैं जो आपका FPO है, FPC है, उससे अनुग्रह करता हूँ, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो भी क्लस्टर लगा हुआ है जो सरकार की तरफ से NRLM का है, उन माताओं बहनों बेटियों से अनुग्रह करूंगा कि जहाँ करोड़ों रुपए का लगा हुआ है, तो आप लोग जहाँ पे शुरुआत कीजिए। अगर आपको कोई चिप्स की अंदर देखा कि मशीनें भी हैं जिसके पाउडर भी बन जाता है, बनाना का, चिप्स काटने का भी, AC का पूरा सिस्टम किया हुआ है, कोई कमी नहीं है सरकार की तरफ से। सरकार ने कुछ नहीं किया। अब किन कारणों से ये बंद है, उन कारणों को आप मिल बैठ के वो चीज़ें दूर कीजिए। और जो मैंने पहले ही बताया FPC, अगर FPO है उसके टेक ओवर कीजिए, हैंड ओवर कीजिए जे, या फिर जो NRLM का जो हमारे जहाँ पर है अगर कुछ क्लस्टर है जो तो उनके हैंड ओवर कीजिए। तो इसको आ गया
अत्रि गोत्रा आ गया होम यूनाइटेड 108 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 अत्रि गोत्रा अत्रि गोत्रा आ गया होम यूनाइटेड 108 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 अत्रि गोत्रा अत्रि गोत्रा आ गया होम यूनाइटेड 108 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 अत्रि गोत्रा अत्रि गोत्रा आ गया होम यूनाइटेड 108 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 अत्रि गोत्रा आय के साधन कितने, थोड़ा इस पे एक बार सर्वे करवाना चाहिए, नहीं तो अगले प्रोग्राम करने का कोई फायदा नहीं। ये आपने डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट का प्लान बनाया था, उसमें कंपोनेंट था, आप सर्वे तो कर रहे थे? यस सर, हम लोगों ने एक स्किल गैप सर्वे किया है। स्किल गैप से जो सर कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी 8-10 साल में पिछले वर्ष में पिछले कुछ वर्षों में तो यहाँ पे लोग स्किल्ड हुए हैं, उनका प्लेसमेंट लेवल, करंट स्टेटस ऑफ ऑक्यूपेशन, उनकी आय में कितनी बढ़ोतरी हुई आपकी स्किलिंग से, कितने लोग ड्रॉप आउट हुए, वो डेटा है आपके पास? ये सभी है। तो मैं सर इसकी रिपोर्ट आपको दे देता हूँ। सर ये स्किल में इनका जो सिलेबस है बहुत ओल्ड है, अपग्रेड करना चाहिए। स्किल में डेली नया होता है तो हमारी मार्केट में भी उसका प्रभाव पड़ता है, स्किल तभी डिमांड आएगी। अगर कोई रोजगार करता है तो उन जो चीजें जो सिखाते हैं वो ओल्ड हो चुकी हैं। हाल ही में SHG के लिए ट्रेनिंग की थी चप्पल निर्माण के लिए, तो RCT वालों ने बोला कि हमारे पास ये चीजें है ही नहीं, तो हमें थोड़ा ऑर्गेनिक के साथ टेक्निकल चीजों में ताकि हर बेरोजगारी कम हो, तो इनके सिलेबस चेंज कराने की जरूरत है। और रुचि नहीं है लोगों को। अभी सुंदरनगर में एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग पालनपुर में हो रही है, तो ब्लॉक वाले फोन करते हैं, धक्के से भेज रहे हैं, जिसकी रुचि नहीं है वो कैसे सक्सेस होगा, वो घर में भी नहीं करेगा। बस फॉर्मेलिटी कागजों में हो गई, वीडियो ऑफिस से चले गए, आधी सर्टिफिकेट मिल गई, फोटो आगे, ये चीजें हो रही है। फैक्ट्री ग्राउंड में कुछ रिजल्ट है जिस कारण हमारे देश का सरकार का लाखों रुपए का नुकसान, इसके ऊपर गंभीर विषय। सर जैसे मॉडल करिकुलम की सर ने बात करी है, तो सर हमारा 22 में भी मॉडल करिकुलम जो सिलेबस रहता है NSQF अलाइंड कोर्सेज का, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो कि सारे नेशन में रन हो रहा है सर, वो टाइम टू टाइम रिवाइज होता है। ऐसे कोई भी कोर्सेज नहीं है जो अपग्रेड नहीं हुए हैं। और सर एक और सबमिशन था इसमें, सर जो हमारे कोर्सेज कांगड़ा जिला में रन हो रहे हैं वो सर एज पर डिमांड हम लोग उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी का गठन हुआ है, जो भी हमारे जिला कांगड़ा की रिक्वायरमेंट है एज पर दैट हम लोग सर यहाँ पे कोर्सेज भी रन करवा रहे हैं, चाहे वो स्पार्क से हो, चाहे सर वो आयुर्वेदा से रिलेटेड हो, या फिर ITI की ट्रेनिंग्स हैं या रेजिडेंशियल कोर्सेज हैं। बस सर वो HPSDP में है, ADB फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं। और PM कौशल विकास योजना और सर हमें 3.2 में टारगेट मिला था, जो कि सर बहुत कम था। 14 हमें एक कंपोनेंट में मिला था कोविड क्रैश कोर्सेज के दौरान, और सर दूसरा हमें RPL में 200 नंबर्स मिले थे जो हम लोगों ने कंप्लीट किए। बैंक से कौन है? कौन से बैंक? PNB बैंक। किस डेजिग्नेशन पे? डिप्टी में। और किसको अपेक्षित है यहाँ पर आना?
कहाँ पे हैं? मेरा नाम मीना है, मैं समूह सहायता से जुड़ी हूँ और मेरी हिमाचल की दीदी ने चप्पल बनाई है, हम लोगों ने उनसे खरीदी है अपने परिवार की। पहनने में बहुत अच्छी है, मैं अपने परिवार के लिए खरीदी है। मेरा नाम ममता गुप्ता है, जनपद औरैया से हूँ मैं, ब्लॉक बिदूना, और मेरे समूह का नाम जयवाला जी स्वयं सहायता समूह है। हमारी हिमाचल की बहनों ने ये हेम स्टेप नाम की स्लीपर बनाई है, चप्पल बनाई है, जो कि पहनने में बहुत ही आरामदायक और बहुत अच्छी चप्पल है। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये चप्पल हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी इस चप्पल का प्रचार प्रसार हो और सब लोग इसको खरीदें और अपनी रोजगार पाएं। मेरा नाम प्रीति देवी है, ग्राम कपचरियापुर से आई हूँ, जिला औरैया, ब्लॉक बिदूना से मैं हूँ। मेरा समूह का नाम जय श्री राम स्वयं सहायता समूह है, मैं उसमें अध्यक्ष के पद पर हूँ। और मेरे हिमाचल प्रदेश से हमारे सर आए हैं और ये हिमाचल प्रदेश की महिलाओं ने ये चप्पल बनाई है और उनका ये स्वरोजगार बना रहे और उनका हौसला बुलंद रहे। मेरा नाम उर्मिला दुबे है, मैं प्रतापगढ़ की रहने वाली हूँ, मेरा गांव खराहर है। मैं ये हिमाचल प्रदेश से जो चप्पलें आई हैं, मैं इसको सब अपनी दीदी बहनों को बताना चाहती हूँ कि ये चप्पल बहुत ही लाभदायक है, पहनने में सुंदर है और इसका जो आप लोग प्रयोग करेंगी, आप लोग खरीदेंगी और अपने आपस में खरीद के सबके सहयोग द्वारा सब। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले थोड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ती है हमें, हम क्रांतिकारी हैं। तो सबसे पहले 2 नारे चाय पी रहे हैं, ध्यान से लगाना कोई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातृशक्ति, मातृशक्ति, आयुष विभाग जिंदाबाद, आयुष विभाग। क्योंकि कोरोना में लाखों करोड़ों जानों को आयुष कार्ड ने ही बचाया था, याद है सबको। तो इसलिए 2 नारे अक्षरा भी बन गए, आयुष विभाग, आयुष विभाग। तो मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय डॉक्टर अरुण चंदन जी का, चंदेल बाई जी का, व समस्त मातृशक्ति व अपने बड़े भाई छोटे भाई और बुजुर्गों का, कि जिन्होंने आज अपने गांव में इतना अच्छा ये एक मानव उत्थान का, मानव जीवन उत्थान का, स्वास्थ्य रक्षा का जो ये पहल की है, ये बहुत ही अच्छी है। और हम सौभाग्यशाली है कि इतने अच्छे अधिकारी हमारे हिमाचल देव